Good morning, all of you. Good morning. I hope you all are fine. So let's start with a new topic in grammar, English grammar. The new topic is sentences. This is chapter 1 in your grammar book. Okay, so can anyone tell me what is sentence? Yes, beta, stand up. Yes, beta, what is sentence? At last, stand up. You. Group of words making a meaningful sentence. All will not tell. Let him speak. Yes, beta, very good. Sentence is a group of words that gives a complete sense. ठीक है, सेंस देता है, जो हमें क्या बताता है, पूरा मीनिंग बताता है उस सेंटेंस के बारे में. एग्जाम्पल, is it a sentence? It does not make any sense. Is it a sentence? Yes, because it has complete sense. इसका कुछ मतलब निकल रहा है कि सन कहाँ राइज होता है? In the east direction. A sentence always starts with capital letter. Okay? हमेशा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से. And the words of sentences are arranged in proper way. ऐसा नहीं कि राइजेस सन से पहले आ गया, सन इधर आ रहा है, इन इधर आ रहा है. ये प्रॉपर वे में अरेंज होंगे. Understood? And it has at the end either it will have full stop, question mark, exclamation mark. It depends on types of sentences. किस पे डिपेंड करता है? लास्ट में क्या आएगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे. अंडरस्टूड दिस? ओके. यस बेटा, स्टैंड अप. गिव एनी एग्जांपल ऑफ सेंटेंस. Riya is a girl. Da will not come. Okay. Riya is a girl. Riya is a girl. Okay. Starts with capital letter. It has full stop. A sentence has verb. Sentence में क्या होती है? Verb भी होती है. ठीक है? तो ये sentence है ना? Okay. Yes बेटा. Stand up. Tell me any sentence. I am enjoying the picnic. I am enjoying the picnic. Enjoying this picnic. What will come at last? Full stop. Sit down. So it is sentence. A sentence has two parts. A sentence has two parts. First is subject, another is predicate. Parts of sentences. Mohan is playing football. Mohan is subject and the rest part is predicate.
व्हाट इज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? सब्जेक्ट होता क्या है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हम किसको कहेंगे? सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है या क्या किस चीज के बारे में बताया गया है, जो इंपॉर्टेंट थिंग होती है ना, दैट इज आवर सब्जेक्ट। और जो रेस्ट पार्ट होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो डिस्क्राइब करे कि ये सब्जेक्ट ये वर्क कर रहा है, तो वो क्या होगा? प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे इन दिस सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है? मोहन के बारे में बता रहा है कि मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। तो मोहन क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। एंड मोहन क्या कर रहा है? वो पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? प्रेडिकेट। Okay, now you will let me know any example and tell me what is subject and what is predicate in it. Stand up beta Durva. Yes beta. Tell any sentence. I went to the museum yesterday. Okay, very good. Sit down. Stand up. हाँ. I am playing in the garden. Make any tough sentence. थोड़ा सा टफ बनाओ, ये तो these sentences are very easy. Little bit. थोड़ा सा घुमा फिरा के या अदर टाइप का जो भी माइंड में आ रहा हो. Yes. Shubham is very intelligent boy. Okay, Shubham is very intelligent boy. Okay, I am writing 2 examples. The lion wanted to eat the rat. This is example number 1, 2. At the corner of the street lived Ramu. I have written 2 sentences on the board. The lion wanted to eat the rat. The whole sentence is about किसके बारे में है पूरा sentence? Lion के बारे में. So lion is our subject and wanted to eat मतलब lion के बारे में क्या बताया गया है कि it wanted to eat rat. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? Predicate part. Understood? In next sentence, stand up beta. What is subject? Yes beta. Ma'am, Ramu is the subject and at the corner of the street lived is the predicate. Very good. Sit down. Ramu is subject in this sentence क्योंकि ये पूरा sentence किसके बारे में बता रहा है कि at the corner of the street, गली के एकदम कॉर्नर में कौन रहता है? रामू रहता है. तो सेंटेंस किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? रामू के बारे में. तो रामू क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट इज प्रेडिकेट. तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आए, वो कहीं पे भी आ सकता है. ठीक है, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में सेंटेंस बताया गया है, वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. अंडरस्टूड? ओके, सिट डाउन. नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. डू यू ऑलवेज स्पीक सेम टाइप ऑफ सेंटेंस? एक ही तरीके का सेंटेंस बोलते हो आप? नहीं ना, अलग अलग तरीके के बोलते हो ना. कभी आप रिक्वेस्ट करते हो किसी सेंटेंस में, किसी में ऑर्डर देते हो, किसी में आप अपने एक्सप्रेशन बताते हो, किसी में क्वेश्चन करते हो. तो वो सब किस कैटेगराइज्ड है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ
sentences. First is declarative. Declarative sentence. Declarative sentence क्या होता है? It gives जनरल इंफॉर्मेशन. क्या देता है हमें? जनरल इंफॉर्मेशन देता है. कुछ भी स्टेट करता है, कुछ भी डिक्लेयर करता है, वो क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इट कैन ईदर बी अफर्मेटिव और नेगेटिव. ये अफर्मेटिव भी हो सकता है यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. एग्जाम्पल, डिक्लेरेटिव एग्जाम्पल, कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास या मम्मा इज कुकिंग फूड. Mother is cooking food. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो कुछ भी डिक्लेयर करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ भी स्टेट करते हैं, कुछ भी बताते हैं हमें. ये अफर्मेटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं. अफर्मेटिव में सिंपल, ठीक है, और नेगेटिव में जिसमें नॉट का यूज किया जाता है. ठीक है, बेटा गिव एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. क्लोज योर बुक, नो वन विल चीट फ्रॉम बुक. फोल्ड योर आर्म्स. हाँ, आई लाइक टू प्ले टेनिस. Play tennis. Stand up. Example of any negative sentence. You can change this sentence also into negative form. Wait. Unable to hear. Change this sentence into negative form. No one will say ma'am, ma'am, please. Only raise your hands. Yes, beta. Have seat. Yes, yes, I am. If you want to frame your own sentence, you can tell. I cannot go to school. No one will laugh. I cannot go to school. In this sentence, not is being used. Not का यूज किया है या no का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस कौन सा होता है? नेगेटिव. और जिसमें सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन होती है अफर्मेटिव. एंड ये किसके एग्जाम्पल है? डिक्लेरेटिव के. नाउ first, understood what is declarative sentence? Yes, ma'am. Second है हमारा imperative. Imperative sentence. One thing I forgot to tell you, in declarative sentence it ends with full stop. किससे लास्ट में क्या आता है? इसके फुल स्टॉप आता है. ठीक है, और बताइए फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लास्ट में फुल स्टॉप. ओके. इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस आर सेंटेंसेस इन विच वी गिव कमांड, ऑर्डर और वी रिक्वेस्ट. या तो हम कमांड देंगे, ऑर्डर देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, या हम रिक्वेस्ट करेंगे. वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. हु विल गिव एग्जांपल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस? फर्स्ट गिव एग्जांपल ऑफ कमांड. हाँ, एनी एग्जांपल ऑफ कमांड बेटा? कमांड मीन्स इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर. No one will say, I have
already told you, no one will say ma'am, ma'am. Okay, just raise your hand, I will call you. Give me that glass. Give me that glass. Okay, give me that glass. So what should I put at the last? Full stop. Full stop. Okay, sit down. Give me example of imperative sentence which has request in it. No one will say ma'am, ma'am. I don't like this. Please close the door. Please close the door. These are the examples of imperative sentences. Acha, can anyone tell me where is subject in this sentence? Glass. Glass. Anyone else? Okay, glass is subject? No, glass is not. Let me explain. Sit down. Sit all of you. Listen beta. Imperative sentences, सब्जेक्ट इज नॉट देयर. ये सब्जेक्ट जो होता है ना इंपेरेटिव सेंटेंस में, ये हिडन होता है. क्या होता है? हिडन होता है. अगर मैं इसी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में यानी डिक्लेरेटिव में चेंज करूं तो मैं इसे कैसे बोलूंगी? यू गिव मी दैट ग्लास, ऐसे ही बोलूंगी ना. यू गिव मी दैट ग्लास. मैं किसी को ऑर्डर दूंगी, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ यू गिव मी दैट ग्लास. गिव मी दैट ग्लास तो कुछ हुआ ही नहीं ना, इसमें तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है. मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, आप यू इसमें क्या है? हिडन है. तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है. क्या होता है? ओनली प्रेडिकेट. क्या होता है? ओनली प्रेडिकेट. अंडरस्टूड? ओके. एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद वर्ब. किससे शुरू होता है? वर्ब से होता है. एग्जाम्पल, ओपन द डोर, कम हेयर. कम क्या हो गया? वर्ब हो गई. कम हेयर. प्लीज गिव मी सम मनी. प्लीज तो रिक्वेस्टिंग वर्ड हो गया. गिव मी सम मनी. बेटा लिसन वन बाय वन. आर यू टेलिंग मी सेंटेंस और वांट परमिशन? सेंटेंस. ओके, लिसन. verb. Give is verb. क्या है इसमें? verb है. Please is requesting word. हमने ये अलग से ऐड किया है ताकि हम बता दें कि हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं. और close क्या है इसमें? verb. जो imperative sentences होते हैं वो किससे शुरू होते हैं? हमेशा verb से शुरू होते हैं. अंडरस्टूड? और जो imperative sentences के लास्ट में क्या आता है? full stop. क्या आएगा? full stop. and it does not have subject. इसके अंदर subject नहीं होता है, hidden form में होता है. पूरा sentence क्या होता है? predicate होता है. अंडरस्टूड? ओके. now third is interrogative sentences. Interrogative sentences are those in which we ask question. इसमें क्या करते हैं हम? Question करते हैं बेटा. In interrogative sentences, question is being asked. Question is asked. ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है. ये क्वेश्चन किससे चालू होता है? We can start it with a helping verb. या तो क्वेश्चन हमारा किससे चालू होगा? हेल्पिंग वर्ब से, या WH क्वेश्चन वर्ड से. क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा. हेल्पिंग वर्ब. एग्जाम्पल, इज एमआर, was verb. They is not helping verb. Has, have.
एंड मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब यू नो, मॉडल वर्ब क्या होती है? कैन, कुड, मे, शैल, दीज आर मॉडल वर्ब. तो क्वेश्चन सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर WH क्वेश्चन वर्ड. WH मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, whom, wait, how. These are the question words and we put question mark at the end of the sentence. सेंटेंस के लास्ट में क्या हम लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं? इम्पेरेटिव में फुल स्टॉप एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क. ठीक है. Example of interrogative sentences. Yes, Peter, stand up. What are you doing? No one will say anything. Is it right? No one will say. Yes, beta, is it right? Yes, beta, stand up. Is this sentence right? Right? Okay. Yes, beta. This is right? Okay. No one will. Again you are saying ma'am, 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 ma'am. I don't like this. I will ask. Yes, beta. Why? Because this is incorrect. Because I didn't put question mark at the last. अभी आपको बताया ना जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. ठीक है. Sit down. Yes, beta. Stand up. Beside you. Yes. How many students are there in the class? How many? Class. Sit quietly. How many students are there? Are there in the? I am not asking. I am explaining interrogative sentences. Is it right? Okay. Yes. You did not tell me any example which starts with helping verb. कोई helping verb वाला भी तो example देके बताओ. You all are using WH question word. Yes, la. May I drink water? Very good. This is number 1. Number 2. May I? Shall I write take water? क्योंकि drink थोड़ा पुराना verb हो गया तो new verb use करते हैं. May I take water या have water? What is your? I don't like this, ma'am, ma'am, ma'am. I will ask, beta. Just raise your hand. Yes. Have you done your work? Have you done your work? Have you done? Now I think you all have understood this type of sentence. समझ में आ गया सबको? Go ahead. Number 3rd or 4th? 4th. Exclamatory sentences.
यस बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जो एक्सप्रेशन शो करता है। क्या शो करता है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे? हैप्पी का एक्सप्रेशन, सरप्राइज का, सौरो का, दुख का एक्सप्रेशन। तो जिस भी सेंटेंस में आपको लगे कि ये वर्ड्स आए वो कौन से सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड इट हैज एक्सक्लेमेशन मार्क एट द लास्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसे स्टैंडिंग लाइन और नीचे डॉट लगा देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये। ठीक है? एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग वन एग्जाम्पल। How lovely the weather is! Exclamation mark. This is exclamatory sentence. यानी कितना आज का वेदर कितना लवली है, कितना प्लीजेंट है। ठीक है? ये क्या कर रहा है? सरप्राइज दे रहा है, सरप्राइज एक्सप्रेशन शो कर रहा है। नाउ यू विल टेल मी एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। किसकी टर्न नहीं आई अभी तक? हैंड रेस करो बेटा। यस, आप। हाउ लकी यू आर। वेरी गुड। हाउ लकी यू आर। राइट बेटा? इज इट राइट? What is incorrect? Exclamation mark. ठीक है? Can anyone tell me what is subject in these sentences? One by one. बेटा yes. In first sentence, what is subject? Lovely subject नहीं होता है, lovely होता है adjective. ठीक है? इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? वेदर के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? वेदर के बारे में। द वेदर इज आवर सब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? यू के बारे में। यू के बारे में बताया है, तो ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। एंड रेस्ट पार्ट इज प्रेडिकेट। रेस्ट पार्ट क्या है हमारा? प्रेडिकेट। अंडरस्टूड? All 4 types of sentences समझ में आ गए? One thing I forget to tell you. Interrogative sentences में subject कहाँ होता है? Example of any interrogative sentence. Is your name Bhavik? Is your name Bhavik? Okay. और ये तो this is very simple. Have you done भी नहीं थोड़ा सा? और Are you going there? Are you going there? Use WH question word to frame sentence. What is your name? This is very simple beta. What is the When will you go to see? Wait. When will your friend? इस क्यों आएगा? will use कर रहे ना हम। When will your friend go to see this movie? Is it right? क्या रॉन्ग है इसमें? क्वेश्चन मार्क। ओके, टेल मी व्हाट इज सब्जेक्ट इन इट। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर सेंटेंस में? क्विकली। यस बेटा। योर फ्रेंड। फ्रेंड अकेला नहीं है यहाँ पे, योर के साथ है। ठीक है? तो योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड के बारे में, सिर्फ फ्रेंड नहीं बोल रहा है, आपके फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, तो योर फ्रेंड इज सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है ना वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। एंड रेस्ट पार्ट इज प्रेडिकेट। अंडरस्टूड?
एक्सरसाइजेज वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है बेटा, आगे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में, इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.